दिन आप सभी को मुबारक हो। मैं मिशेल चंदर आप सभी को इस वेस्टफेस्ट के भाग में स्वागत करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग अपना समय और वक्त को निकाल के इस भाग को देख रहे हैं और शुक्रिया है कि आप लोगों से शेयर करते और आशा करते हैं कि सभी लोग आप इस कार्यक्रम को एंजॉय करेंगे। इस सप्ताह हमारा इस भाग में हर सप्ताह के तरह आत्मिक भोजन रहेगा, हेल्थ टॉक रहेगा, कहीं मसीह गीत भी रहेगा और प्रार्थना सभा भी रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप एंजॉय करें। जेरेमाया 29:11 में कहता है, For I know the future plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. जी हाँ दोस्तों साथियों, यहाँ पर परमेश्वर हमको बतलाता है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारा जो जिंदगी के विषय में सब जानता है और वो हमें जो भी हमारे संग करेगा वो हमें कोई दुर्घटना, कोई दुख, कोई चोट करने के लिए नहीं है, परंतु हमें खुशी रखने के लिए। तो इन्हीं शब्दों से मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहती हूँ और खास स्वागत है पवित्र आत्मा को जो हमारे संग इस वेस्टफेस्ट के भाग में रहेगा। तो आप सभी को सत करने के लिए हम इस कार्यक्रम का पहला गीत में भाग लेंगे। तेरी बात
Greetings, friends. Today we will be talking about our Savior, Jesus Christ, once again. For you see, He is the central focus of Scripture and history, and is also the central focus of Seventh-day Adventist doctrines and experience. There's so much that could be said about our precious Savior, but today we will be focusing specifically on our Seventh-day Adventist fundamental belief number 9, the life, death, and resurrection of Jesus Christ. Friends, this belief is at the very heart of Christianity. It is because of Christ's life on this earth, His cruel death on the cross, and His glorious resurrection from the dead, that we have the hope of salvation. In the beginning, when God created Adam and Eve, they were perfect. Sadly, however, when they chose to disobey God, this world was plunged into sin and sorrow. But thankfully, God had already devised a plan to save them, and that plan was revealed to them as God spoke these words to the serpent, Satan, as recorded in Genesis 3:15. "And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." This was a beautiful promise that God the Son, Jesus Christ, would one day come to this earth, be born of a virgin, and would take on our humanity. He would die in our place, taking the penalty of sin for us on Himself, and die a cruel death on the cross, so that we could be reconciled to God. Jesus was willing to be our substitute, suffering the condemnation that should have been ours, so that we could be set free from sin and live forever with Him. Christ's amazing sacrifice is described beautifully in the book, The Great Controversy. The cross of Christ will be the science and the song of the redeemed through all eternity. In Christ glorified, they will behold Christ crucified. Never will it be forgotten that He, whose power created and upheld the unnumbered worlds through the vast realms of space, the beloved of God, the majesty of heaven, He whom cherub and shining seraph delighted to adore, humbled Himself to uplift fallen man, that He bore the guilt and shame of sin and the hiding of His Father's face, till the woes of a lost world broke His heart and crushed out His life on Calvary's cross. And Christ was not alone in this great sacrifice. We're told in that beautiful passage found in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." God gave the incredible gift of His dear Son so that you and I might have eternal life. But we must accept the gift and allow Him to change our hearts to be like Him. For you see, not only did Jesus die for us, but He also lived a sinless life of love so we could have an example to live by. His life, death, and resurrection made way for our salvation and shows us what love really looks like. Our fundamental belief number 9 explains it this way. In Christ's life of perfect obedience to God's will, His suffering, death, and resurrection, God provided the only means of atonement for human sin, so that those who by faith accept this atonement may have eternal life, and the whole creation may better understand the infinite and holy love of the Creator. This perfect atonement vindicates the righteousness of God's law and the graciousness of His character, for it both condemns our sin and provides for our forgiveness.
The death of Christ is substitutionary and expiatory, reconciling and transforming. The bodily resurrection of Christ proclaims God's triumph over the forces of evil, and for those who accept the atonement, assures their final victory over sin and death. It declares the lordship of Jesus Christ, before whom every knee in heaven and on earth will bow. Friends, what an amazing, incredible God we serve. This God who has provided a way for our salvation. The Apostle Paul put it succinctly when he wrote, "For since by man came death, by man," that is Jesus, "also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive." This subject is so rich and so deep, we will be studying it throughout eternity. However, if you would like to learn more now about the incredible life, death, and resurrection of Jesus Christ, I encourage you to visit the URL given at the bottom of the screen. I also recommend reading an amazing book on the life of Christ, The Desire of Ages, written by Ellen G. White. You will be wonderfully blessed as you read this beautiful book, available free at egwritings.org. Friend, if you have not yet accepted Jesus Christ as your personal Savior, I invite you to do so right now. There is no better time to do this than this very moment. Or perhaps you once knew Him, but have since drifted away. He is waiting. Jesus is waiting for you right now, with forgiveness freely available to all who come to Him. Now is the time to come to Him, the one who loves you, who died to save you, who lives again to restore you, and is coming back very soon to take us home to live with Him forever. जगह की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पर आया, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पर आया, होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया।
क्या कोई रोक ना सकेगा मुझको आने से तेरे करीब। जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया। जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताकी। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह ताकी। जल्दी आना संग में चलूं तूने जो घर है बनाया। जल्दी आना संग में चलूं तूने जो घर है बनाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। खुशी मिली तुझ में मसीह जब से दिल में तू है आया। हैप्पी सैबथ। मैं आप सभी को इस सप्ताह के हेल्थ टॉक में स्वागत करना चाहती हूँ। इस सप्ताह हम कुछ ऐसे चीज को देखेंगे जो हम ज्यादा कर ड्राई खाते हैं या कभी कभी प्यूरे फॉर्म में खाते हैं। आज हम प्रून्स के विषय में देखेंगे और अगर आपको और जानना है तो आप healthshorts.com से जान सकते हैं और वो हमारा इस सप्ताह का सोर्स है। प्रून्स, जी हाँ, कई लोग कहते हैं कि हमें प्रून्स खाना चाहिए क्योंकि वो एक हेल्थी चीज है और हमारा जो शरीर है उसे हेल्थी रखेगा। वो बहुत सही है और मैं आपको 3 रीजंस दूंगी आज ताकि मैं आपको कन्विंस कर सकूं कि प्रून्स हमें खाना चाहिए। पहला है प्रिवेंट्स अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, यानी कि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये हमारे शरीर में जो डैमेज सेल्स को रिपेयर कर देता है। तो जैसे ये हमारे डैमेज सेल्स को रिपेयर कर देता है तो हमारे जो शरीर है वो एजिंग का साइन बहुत कम दिखाएगा। और अगर आप बहुत बूढ़े होने लगे हो तो आप ये खाइए ताकि आपका जो एज है वो आपका चेहरे पर नहीं दिखाएगा। दूसरा, प्रिवेंट्स हेयर लॉस। इसमें जो प्रून्स में हम देखते हैं अच्छा अमाउंट ऑफ विटामिन बी और विटामिन ए है और इस दोनों विटामिन से हमारा बाल गिरने का चांसेस कम रहता है। तो अगर हम प्रून्स खाएंगे तो बाल हमारा बहुत नहीं गिरेगा और अगर आपका बाल गिर रहा है तो आप प्रून्स खाइए। तीसरा पॉइंट, रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। कई लोग इस दुनिया में वो हर हफ्ते या हर रोज कॉन्स्टिपेशन से गुजरते हैं, तो अगर आप प्रून्स खाएंगे उसमें जो हाई फाइबर कंटेंट है उससे आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाएगा। अब हम चलो जल्द से देख लें कि कितना प्रून्स हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए। तो यहाँ पर रिसर्च कहता है कि अगर आपका जो डाइट में
फाइबर बहुत कम रहता है या अच्छा अमाउंट ऑफ फाइबर नहीं रहता है, तो आप हर दिन लगभग 1 या 2 प्रून्स ही खाएं। 1 या 2 प्रून से ज्यादा मत खाइए, क्योंकि आपको और साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि क्या होता है अगर हम प्रून्स हर दिन खाएं। मैं बतला दूं, अगर आप प्रून्स हर दिन खाओगे तो आपको डायरिया हो सकता है, क्योंकि हम पहले देखे थे कि प्रून्स रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। परंतु अगर आप बहुत खाएंगे या हर दिन खाएंगे तो आपका पेट तो साफ हो जाएगा, परंतु वो जो नॉर्मल खाना हम खाते उससे हमें डायरिया होने लगेगा और हमारा जो शरीर है वो नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो आप हर दिन नहीं खाइए, परंतु 1 या 2 दिन हफ्ते में खाएं। फिर अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या हम प्रून्स खाली पेट खा सकते हैं, तो डॉक्टर हॉशमैन ने कहा है, for people who have a low intake of fiber in their diet, in general we recommend introducing prunes gradually. Avoid consumption of prunes on an empty stomach and spread the intake throughout the day. इसमें डॉक्टर हॉशमैन हमको समझाता है कि हमें खाली पेट प्रून्स नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाली पेट खाएंगे तो हमारे जो शरीर में बहुत ज्यादा फाइबर हो जाएगा। फिर अगर आप खाली पेट ना खाएं, परंतु आप दिन भर में स्प्रेड कर दें, यानी कि आप अगर ब्रेकफास्ट मील के बाद में आप 1 प्रून खा सकते हैं, फिर आप शायद सांझ के टाइम खा सकते हैं अपने जो डिनर के मील के बाद या डिनर के मील के साथ। और आखिरी में हम देखें कि प्रून्स का साइड इफेक्ट क्या है। पहला तो हम देख लिया, अगर हम प्रून्स हर रोज खाएं या बहुत ज्यादा मात्रा में प्रून्स खाएं तो हमें डायरिया हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फाइबर है। और दूसरा है, क्योंकि जो प्रून्स में नेचुरल शुगर है और अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हमें गैस या ब्लोटिंग हो सकता है। हमारा जो पेट है वो पिराने लगेगा, क्योंकि पेट में बहुत ज्यादा गैस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथियों, ये हमारा इस सप्ताह का हेल्थ टॉक था प्रून्स के विषय में। मैं आशा करती हूँ कि आप प्रून्स खाइए, परंतु अच्छे मात्रा में खाइए और खाली पेट नहीं खाइए। और आप सभी इस कार्यक्रम को एंजॉय करते रहिए। शुभ रात्रि। पापों के बोझ से बचाते हो,
हृदय से सभी को स्वागत करना चाहता हूँ इस सब दिन को, जहाँ पर भी आप लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को। नसीनु हिंदी स्पीकिंग चर्च का जो फेसबुक प्रोग्राम हर सप्ताह चलता है, मैं ऑर्गेनाइजर्स की ओर से आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम धन्यवादी हैं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमेशा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हमारे ये प्रार्थना है कि जैसे आप लोग हमेशा इस प्रोग्राम को देखते हो, परमेश्वर के आशीष बहुतायत से आप सब लोग को ऊपर रहे। आज का जो शिक्षण है वो ईस्टर वीकेंड के बारे में है। मैं आग्रह करता हूं कि उसमें जाने से पहले क्यों नहीं हम सब अपना सिर को झुकाए प्रार्थना करें। परम पिता परमेश्वर, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, एक बार फिर से प्रभु हम सब अपना सिर झुकाकर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम धन्यवादी हैं पिता इस अवसर के लिए जहां हम इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं कि तूने हम सभी को रक्षा रखवाली किया और अपना प्रेम के द्वारा सभी को सही सलामत इस वक्त तक पहुंचाया। प्रभु जी, आज जैसे हम सब मिलकर आपके शिक्षा में से, धर्मशास्त्र में से कुछ सीखे, हमारी विनती है कि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सब पर रहे। जो कुछ हम यहाँ पर सुने सीखे, हम उस पर कोशिश करें कि हम उस पर लाभ उठा सके और अपना जीवन में हर एक जो लेसन इस पर मिलेगा हम अपना जीवन में इस्तेमाल करें। हम सबका पाप क्षमा दे मेरे पास, सभी को तू आशीष देना। ये जो विनती है प्रभु यीशु के महान नाम से मांगता हूं, आमीन। आज का जो वीकेंड है, दुनिया के सारे लोग इस वीकेंड को मनाते हैं, खास करके हमारा भाई ईसाई लोग इस वीकेंड को ईस्टर वीकेंड कहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो ईस्टर वीकेंड है, जो ईसाई लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके मतलब क्या है। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि जब भी किसी प्रचारक ईस्टर के बारे में कुछ प्रचार कर रहे हैं, तो ईस्टर के मतलब ये है कि परमेश्वर का जो, प्रभु यीशु मसीह का जो कहानी है, उसका मृत्यु, उसका किस तरह से दफनाया गया और उसका प्रतिज्ञा अनुसार जो तीसरा रोज में उन्होंने जी उठा। तो दुनिया इसके बारे में या इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, हमारा यह जो धर्म है सेवन डे एडवेंटिस्ट है, वो तारीख से ताल्लुक नहीं रखे, लेकिन जो इवेंट है वो सचमुच इवेंट था। प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया के पाप के लिए मारा गया, फिर जीवित पे अपना चेलों लोग से ये कहा था कि रोमियो के लोग मुझको मारेंगे, लेकिन तीसरा रोज बाद मैंने जी उठा। तो हम जब उसको देखे, पिछला ईस्टर सेलिब्रेशन को देखे, इससे 2 साल पहले बहुत से चीज ईस्टर सेलिब्रेशन को लेके
बदल चुका है। बहुत से चीज डिस्टर्ब हो चुका है। कुछ लोग के जो लाइफ है वो डिसरप्ट हो चुका है, और बहुत से लोग जानते हैं कि सब कुछ दुनिया में दोबारा नॉर्मल जैसे लोगों ने जी रहे थे उस प्रकार से अब नहीं होगा। बहुत से लोग डिस्करेज हो चुके हैं, और बहुत से लोग उनका जो आशा है, उनका जो होप है, वो बदल चुका है। तो दुनिया में जो ये सब चीज हो चुका है, लेकिन एक ही चीज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि द मैटर ऑफ फैक्ट इज, प्रभु यीशु मसीह जो है वो फिर से जी उठा। वो मृत्यु से जी उठा है। उसका जो कब्र है वो खाली पाया गया। उसके ये मतलब है कि जैसे उन्होंने वादा किया था, मरने के बाद तीसरा रोज वो फिर से जी उठेगा। तो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेलों लोग से वादा किया था, उसके भरपूर जो था वो हो चुका है। इसीलिए दुनिया के ईसाई, सारे ईसाई लोग ये जो ईस्टर वीकेंड है वो हरदम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं 2-3 शब्द अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं कि ईस्टर संडे मॉर्निंग हैज चेंज्ड द एंटायर वर्ल्ड फॉरएवर। हमारा जो दुनिया है, रविवार के सुबह जिस दिन पर प्रभु यीशु मसीह ने जी उठा, वो जो इवेंट है, हमारा सारे दुनिया में बदलाव आया, वो बदलाव लाया है। इट हैज चेंज्ड आवर इटर्निटी। हमारा जो इटर्नल लाइफ है उसमें परमेश्वर ने बदलाव लाया है, क्योंकि हम सब ने पाप किया है, और पाप के मजदूरी जो है वो मौत है। यदि परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने बलि नहीं चढ़ा था, तो हम जो पापी मनुष्य है, हम सब के लिए ये जो नरक है रखा है। प्रभु यीशु मसीह के मरने से आज हम सब वो कह सकते हैं कि हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग सिखा दिया, दिखला दिया कि तुम्हारा जो नरक शैतान ने तैयार किया है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह ने अटल रहे हैं, उनके लिए ये जो मृत्यु है, प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने के लिए हम सभी के लिए जीत लिया है। तो बिकॉज समथिंग ग्लोरियस was going to happen, because he has risen again and he will come back to take us home. मैं ये चीज सभी को ये बतलाना चाहता हूं कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए मर चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति के लिए अपना लहू को बहाया है। उसके खास मकसद ये है कि हम पाप में ना बने रहे, पर हम उसकी ओर दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। We need to remember that on Easter Sunday, that death was defeated by life. हमें ये चीज याद करना चाहिए कि ईस्टर संडे जो है
जिस दिन पर प्रभु यीशु मसीह ने जी उठा, उन्होंने मौत को कमजोर कर लिया। डेथ जो है उन्होंने डिफीट कर लिया। और दूसरी बात, sin was consumed by mercy। हमारा ये जो पाप है वो अपना अनुग्रह से मोल लिया है। जो कुछ पाप हमने किया है तो उस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह के द्वारा इस पाप को कमजोर कर दिया। ग्रेव was swallowed up by victory। कब्रिस्तान जो है परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी कमजोर कर दिया। जैसे आप लोग जानते हैं कहानी में मत्ती के पुस्तक verse 28 verses 1-4 वहां पर लिखा है कि मरियम और दूसरा मरियम कब्रिस्तान की ओर जा रही थी। उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जो कब्र था वो खाली पाया गया। जो चट्टान कब्र के द्वार में लगाया गया था वो अपने में बात कर रही थी। रास्ते में जब चल रही थी तो अपने में बात कर रही थी कि ये जो चट्टान है इनके लिए कौन मनुष्य वहां पर रहेगा जो चट्टान है उसको हटा देगा। लेकिन वो दोनों जो थे वो लोग अचंभित हो चुके हैं जब उन्होंने देखा कि उनके लिए जो बड़का चट्टान था परमेश्वर के ग्रेवयार्ड उसके कब्र में जो लगाया गया था, स्वर्गदूत ने उस पत्थर को हटा दिया। जब इन दोनों व्यक्ति अंदर जाकर देखा तो उनका प्रभु यीशु मसीह का जो लाश था, उसका जो शरीर था वहां पर नहीं पाया गया। खुला हुआ कब्र के मतलब यह है कि उसका जो कब्रिस्तान है वो खाली पाया गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं रह गया। आज जब हम देखते हैं हर एक व्यक्ति का जो नामी व्यक्ति को जिनको लोगों ने स्तुति कर रहे हाथ जोड़कर, उनका जो कब्र है अभी भी बंद रहा है। उनका जो कब्रिस्तान है अभी भी बंद रहा है। पर प्रभु यीशु मसीह का जो कब्रिस्तान है वो खाली पाया गया। उसके मतलब क्या है? मतलब ये है प्यारे दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर उसका जो शरीर है, उसका जो लाश है वहां पर नहीं पाया गया। क्यों? उनका प्रतिज्ञा अनुसार जैसे उन्होंने अपना चेलों लोग से वादा किया था कि मैंने तीसरा रोज बाद फिर से जी उठेगा, प्रभु यीशु मसीह ने जी उठा है और आज उन्होंने स्वर्ग में है। और जैसे उन्होंने कहा था अपना चेलों लोग से कि सुनो, तुम्हारा जो मन है व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो। और जैसे यीशु ने कहा कि मुझे पर भी, प्रभु के घर में बहुत से रहने की जगह है, अगर जो ना होती तो मैं तुमसे कहा देता कि मैंने जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। अगर जो मैंने जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर से आऊंगा, तुम सभी को लेके जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ये जो शिक्षा है सभी को बतलाना है, सभी को बताना है, हर एक जगह में जाकर बताना है कि प्रभु यीशु मसीह का जो कब्रिस्तान है वो खुल गया है, वो रहने गया है। जब उन्होंने को कब्रिस्तान का जो शक्ति है प्रभु यीशु मसीह ने कमजोर कर दिया है, उसके पत्थर नहीं रोक सका, उसके मृत्यु नहीं रोक सका, उसके शैतान का जो शक्ति है नहीं रोक सका। रोमियो के राज लोग थे, जो सोल्जर लोग थे, उनका जो फोर्स थे
उनका जो माइट है, ताकत था, प्रभु यीशु मसीह को नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने फिर से जी उठा। यह एक सुसमाचार है और सभी को यह बतलाना है कि उन्होंने अपना प्रेम को सभी को दिखाया और इस प्रेम के द्वारा हम सब आनंद जीवन पा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि संसार को, परमेश्वर ने जैसे इस संसार को प्रेम किया है, उन्होंने अपना एक लौता पुत्र को दिया कि जितना लोग उस पर विश्वास लाए तो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। ये मेरे सुनने वाले लोग, ईस्टर का जो सेलिब्रेशन है हर साल आता है, लेकिन हम आप लोग को यह सवाल करना चाहता हूं कि हर साल जब हम उसको याद करते हैं, हर साल जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्यों लोगों ने अपना जीवन में बदलाव जो है नहीं लाते हैं? बहुत से लोग बिजनेस की तरह लेके चला जाते हैं कि ईस्टर सेल लगा देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब ईस्टर के सेलिब्रेशन आते हैं तो हम अपना बिजनेस जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत से सेल लगाते हैं। लेकिन उसके खास मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने, लोगों ने उसको मारा है और पाप के लिए मारा है, लोगों ने उसको दफनाया है और जैसे उन्होंने वादा किया है कि तीसरा रोज बाद उन्होंने फिर जी उठेगा। आज वो जो सुसमाचार है, जो प्रभु यीशु मसीह को, जिसके मैंने सेवा करता हूं और जैसे आप लोग ने उसको स्तुति करते हैं, वो आज इस दुनिया में रह नहीं गया है। उसका जो कवर है वो खाली मिला है और वो स्वर्ग में है। हर एक व्यक्ति के लिए, चुने हुए लोग के लिए जगह तैयार कर रहा है। हम उसको इंतजार कर रहे हैं जिस दिन पर प्रभु यीशु मसीह ने आकर अपना चुने हुए लोग को लेकर जाएगा। और हमारे ये विनती है कि जैसे हम अपने आप को तैयारी करें, उसके सही मार्ग पर चले और अपना जीवन को परमेश्वर की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहे, हम अटल रहे, उसके साथ संबंध जोड़े। जब वो आएगा दोबारा तो हम जरूर उस पर सम्मिलित रहेगा। हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सभी को ईस्टर वीकेंड को उसके खास मकसद जो है उस पर ध्यान लगाए और अपने आप को, हमारा जो रिश्तेदार है उससे फिर से उसको हम रिन्यू करें, क्योंकि हम उसके ओर बढ़ते रहे। धन्यवाद सुनने के लिए। आओ हम सब मिलकर फिर प्रार्थना करें। स्वर्ग शक्तिमान दयालु परमेश्वर, हमारा जीवित हुई प्रभु यीशु, जो तू स्वर्ग में है, हम धन्यवादी हैं पिता कि तूने हम सभी के लिए अपना जो लहू है बहाया और तूने जो मौत का जो ताकत है हम सब के लिए तूने कमजोर कर दी है, जहां हम आपकी ओर और पाप के मुक्ति पा सके। ये मेरे बाप, हमारी विनती है कि जो लोग सुन रहे हैं, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। सभी को तुम सहायता करना प्रभु, सभी को तुम मदद करना। हर एक व्यक्ति का जो समस्या है मैं आपके हाथ में सौंपते हैं। तू ही जानते हैं प्रभु उनका दुख, उनका तकलीफ, उनका हर एक मुसीबत हम सब आपके हाथ में सौंपता है प्रभु। और हम सब चाहते हैं कि तंदुरुस्ती, आशीष और बरकत तेरे ओर से आए और इन लोगों को साथ में रहे। हम सभी का पाप क्षमा दे मेरे बाप। ये जो भी विनती है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से
मानता हूँ। आमीन।